Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Lord. We praise your holy name. Lord, we praise your holy name. We praise your holy name, Jesus. Praise your holy name, King of glory. Bless you, praise you, Lord. We bless you and we praise you. We bless you, we praise you, Lord. Hallelujah. Shalom to everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। आज एक बहुत बुरा सुसमाचार आया कि फिल्म इंडस्ट्री के एक युवा एक्टर उन्होंने सुसाइड कर लिया, सुशांत सिंह ने। देखिए कैसे टाइम्स हैं पृथ्वी के ऊपर। इंडीड वी आर एंटरिंग इनटू पेरिलस टाइम्स। प्रार्थना करें संसार के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। हालेलुया। लोगों से यीशु मसीह की ज्योति बांटे। हालेलुया। सुशांत सिंह के फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे, तसल्ली दे। कुछ समय पहले मैंने देखा था कि उनकी कोई सेक्रेटरी थी, उसने भी सुसाइड किया। दीज आर रियली रियली perilous times upon the earth. Father, we pray in Jesus' name for Sushant Singh's father and sisters and his relatives and family members. Lord, that you will comfort them. Lord, in Jesus' name, we speak your peace over them. प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरे वचन के पास हमें रखिए खुदावन, तेरे कलाम के पास रखिए, और प्रभु अपने लहू के साए के नीचे रखिए यीशु मसीह, तेरे खून के साए के नीचे। लॉर्ड जीसस, आई प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम। लॉर्ड, आई ड्रॉ द हेज ऑफ योर ब्लड अराउंड योर पीपल। दोज हु आर जॉइनिंग अस, लॉर्ड, आई ड्रॉ द हेज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। लॉर्ड जीसस, प्रोटेक्ट योर पीपल फ्रॉम the assaults of the wicked one. Lord, protect your people from the forces of darkness that are unleashing their vicious attacks upon your people. The war is becoming intense in the realm of the Spirit. Lord Jesus, I pray, energize your people, strengthen your people, open the eyes of your people that they may see, that they may learn and discern the season, the times that we are living in. Hallelujah. Lord, that your people walk uprightly, that your people walk righteously. Excuse me, that your people walk in purity and holiness, Lord Jesus. Hallelujah. तेरे पवित्र लहू की जय यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय। Lord Jesus, I plead your blood, I plead your blood, I plead your blood, I plead your blood. यीशु मसीह, तेरे खून की जय हो, तेरे खून की जय हो। तेरे लहू की कुदरत को मैं खोलता हूँ, तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ। लॉर्ड जीसस, आई प्लीड योर ब्लड, आई प्लीड योर ब्लड, आई प्लीड योर ब्लड ओवर योर पीपल। आई प्लीड योर ब्लड ओवर माई सेल्फ, ओवर माई हाउस होल्ड। लॉर्ड, आई प्लीड योर ब्लड ओवर आर ड्वेलिंग प्लेस। लॉर्ड जीसस, वी प्लीड योर ब्लड। तेरे खून के साए के नीचे आते हैं प्रभु, तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं, तेरे खून के साए के नीचे। मैं तेरे लहू की कुदरत को एक एक के ऊपर रिलीज करता हूँ, अपने खून में छिपाइए खुदावन, यीशु मसीह के जलाली नाम में खुदावन। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मिली सैगल जो ऑस्ट्रेलिया से प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रही हैं मैनुएला के लिए। प्रभु, लॉर्ड, आई प्रे दैट यू विल प्रोटेक्ट देयर मैरिज, दैट यू विल ग्रांट देम विजडम, Lord, that you will soften their hearts, for it is the hardness of heart that ends up in divorce, Lord Jesus. I release your blood over them, Lord, over those two people who are planning to divorce. May you change their mind. May you cause a shift, Lord Jesus, in their thinking, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, I pray for these folks. I just lift up their lives before you.
I pray for Roby John from Firozpur, Rajbin Palke, Amandeep Kumar. I pray for Krishan Kumar. I pray for Jasveer Singh Surinder. Pray for Brother Lalit. Thank you for healing him from COVID-19, Lord. Thank you, Lord, for Renu Kumari's life. I plead the blood over her. Plead the blood over Manisha Azel. I plead the blood over Devinder Kullar from Britain, over her husband, over her family. I plead the blood over Millie Segal. Plead the blood over Raman Khan, Father. I plead the blood of Yahusha HaMashiach. I plead the blood over Pastor Sandeep Kumar and his father particularly. May you keep him under the blood, under the covering of the blood. Father, I pray for Sahil from Pakistan, for your blessing. I pray for Harpal Bajwa and his wife and their children, Father. Cover them under the blood. For Tanuja Seth, cover her under the blood, Father. I pray for Soma Rani. I cover her and her household under the blood. Lord Jesus, I pray for Avatar Burjman from Chandigarh. May you bless him. May you bless his household, Lord Jesus. Hallelujah. I pray for John Thomas from Joel Nangal, Lord. I bless him, bless his wife, his children, his family, his household. I bless Light of Jesus, your daughter Nar. Under the blood of Jesus, I cover her. Karamjit Kaur, I speak blessing. Amarjit Kaur, I speak blessing of Yahusha HaMashiach. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I pray for Brother Sabi Surjit's parents. I cover them under the blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Lord, I bless Malkiyat Gill and his family, his household, his children. I cover them all under the blood. हालेलुया. तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह। हाले प्रभु जी, मैं जगीर मसीह के लिए जो हिमाचल से आपका खून उनके ऊपर छिड़कता हूँ, उनके घराने पे छिड़कता हूँ, परमिंदर सिंह के ऊपर आपका लहू छिड़कता हूँ। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो। रीना कुमारी फ्रॉम हिमाचल, आई स्पीक ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड over your family. I bless Brother Amrish Kumar. Lord, bless him. Lord, bless him, I pray in the name of Jesus. Bless his household, Lord Jesus. I pray for Rajat Masih, for your blessing and anointing over him in Jesus' name. Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु मसीह। Lord, I also pray for Shuki Gill. Bless them, Father. Bless, Lord. I speak blessing. I speak anointing and favor and the hand of the Lord. Sarabjit Singh, I speak blessing in Jesus' name over Mahir Ji. I plead the blood of the Lamb, Father. Hallelujah. I pray for Brother Malkiyat Gill's mother for healing. May your healing virtue flow, Lord Jesus. Your healing anointing flow. Lord, I pray for Brother Ravi from Delhi. Brother Ravi's household, Lord. Bless that man, Lord Jesus. Open a way for him, Lord. We pray. Pray for Bobby Art. I pray for Pastor Charanjeet. Cover them all under the blood. I pray for Brother Raman Khan, his wife, his family. I pray for Amrik Masih, Brother Amrik Masih. Speak your blessing and anointing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I pray for Sharan Masih, Lord Jesus. Bless this brother. May your hand be upon this brother. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। Jesus, we bless you. Lord Jesus, we bless you. Bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। एक बार हम लोग एक मीटिंग में थे और पास्टर अनस मलवी वहाँ पे थे, तो मैंने वहाँ प्रीच करना था यूएस में, लॉन्ग बैक, आई थिंक इट्स 2002 की बात होगी शायद। तो वहाँ पे कोई गीत गा रहा था, पास्टर अनस जी बजा रहे थे हारमोनियम। somebody was singing, यीशु जी मैनू साम के रखो, दिल दा मैं कमजोर।
तो मैंने अपने प्रचार से पहले उनको ये बताया कि यीशु जी मैनू साम के रखो दिल दा मैं कमज़ोर इज़ अ रॉन्ग कन्फेशन। हमें ये नहीं गाना चाहिए, बल्कि वो गाना चाहिए जो हमारे पुरखे गाते हैं कलाम में। तो उन्होंने मेरे से पूछा साढ़े पुरखे की गाते सी? हमारे पुरखे गाते थे साम 108, ज़बूर 108। सुनिए, वो ये नहीं गाते थे यीशु जी मैनू साम के रखो दिल दा मैं कमज़ोर। वो ये गाते थे, मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा, मजबूत मेरा दिल है। गाइए मेरे साथ, बरबत बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे, बरबत बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावां तेरे, मजबूत मेरा दिल है। Hallelujah. Jesus, we pray that you will speak to us from your word. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम वो गाएं जो परमेश्वर का कलाम कहता है। ये गाएं ज़बूर इसके अंदर जो लिखे हैं। Hallelujah. Sing the word of the Lord. Speak the word of the Lord. Meditate the word of the Lord. Live in the word of the Lord. Let the word of the Lord be everything that you do, that you are, and that you possess, that you desire, that you aspire, that you long for, that you pursue. Hallelujah. Hallelujah. मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हेवन बहुत से भेद छिपा के रखता है। हेवन बहुत सारे भेद छिपाता है। मैंने आपको एक दिन बताया था, गॉड हाइड्स हिमसेल्फ, द हाइडनेस ऑफ गॉड। वी हैड अ वेरी पावरफुल मैसेज ऑन दैट। व्हाई गॉड हाइड्स? ही हाइड्स बिकॉज ही इंटेंड्स अस टू सीक हिम। वो इसलिए हाइड करता है क्योंकि वो चाहता है हम उसके पीछे भागें, उसे ढूंढें, उसे परसू करें। तो मैं आपको कुछ वचन देता हूँ परमेश्वर के कलाम में। न्यू टेस्टामेंट में वैसे तो 7 भेद हैं जिन्हें हम मिस्ट्री कहते हैं, लेकिन आज कुछ पे हम मनन करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, मैं कुछ वचन चाहता हूं हम पढ़ें। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों, आप लिखते जाइए। फर्स्ट थेसलोनियन, मेरे पास इधर पंजाबी की बाइबल है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाता हूं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका 16-17 वचन। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 16-17 सुनिए। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है इसे भी मिस्ट्री। हालेलुया। क्या है मिस्ट्री? यहां पे लिखा है 16 वर्स में, इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल, महादूत दी आवाज़ नाल ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 सुने, अद्भुत वचन।
क्या है? प्रेरित पौलुस इसे दूसरी जगह थेसलोनिया में बोलता है, दिस इज अ मिस्ट्री, लेट मी टेल यू अ मिस्ट्री. व्हाट इज द मिस्ट्री? For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. हालेलुया. प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रभु बादलों के ऊपर उतरेगा. हालेलुया. और जो प्रभु में सोए हैं वो हमसे पहले अविनाशी शरीर हासिल करेंगे. आपको मालूम सबसे खूबसूरत बात बाइबल में क्या है? सबको जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं इटर्नल बॉडी मिलेगी, इम्पेरिशेबल बॉडी. शायद आपने कभी इस पे मनन नहीं किया है, शायद आपने कभी इसका आनंद नहीं मनाया कि ये शरीर जो नाशवान है, ये शरीर के बदले में परमेश्वर एक एवरलास्टिंग, हमेशा हमेशा के लिए कायम रहने वाला जलाली शरीर देगा. वो नूर से बना है. हालेलुया. वो हेवनली फोटोन से बनी हुई बॉडी है जो आपको और मुझे मिलेगी. उसमें हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के संग रहेंगे. दिस वॉज अ मिस्ट्री. हालेलुया. ये एक भेद था. हालेलुया. जिसको पुराने नियम के संतों के ऊपर प्रकट नहीं किया गया. इस रीति से जो रैप्चर का भेद है, बहुत सारे लोग कहते हैं रैप्चर बाइबल में नहीं है. बिल्कुल नहीं है. बाइबल में वर्ड रैप्चर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ग्रीक में वो है हारपेजो. हारपेजो का मतलब होता है टू स्नैच अवे क्विकली बिफोर डिजास्टर हिट्स. एकदम उठा लेना, स्नैच कर लेना. और जब इसको ग्रीक से ट्रांसलेट किया गया सेप्टुअजिंट में, वलगेट में, सेप्टुअजिंट तो ग्रीक ट्रांसलेशन है, जब वलगेट में ट्रांसलेट किया गया जो रोमन कैथोलिक बाइबल है, उसके अंदर जो इसका लैटिन इक्विवेलेंट है हारपेजो का वो है रापेरे, जहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता है रैप्चर. हालेलुया. वहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता है रैप्चर. अब मैं आपको एक और मिस्ट्री देने जा रहा हूँ. मेरे संग निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 51 वचन. 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स नंबर 51. देखें. बिहोल्ड आई शो यू ए मिस्ट्री, वी शैल नॉट ऑल स्लीप बट वी शैल ऑल बी चेंज्ड. देखो मैं तुम्हें एक भेद बता रहा हूँ. हालेलुया. यस रजत मसीह, वेरी गुड. rapere is a Latin word which means rapture. From there the word rapture comes, rapere se. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. हम सब बदल जाएंगे. हमारी ये जो बॉडी है, ये जो एलिमेंट से बनी है, सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे. Our very DNA, our very structure will change, and we all will have a glorified body, a body that is made out of the heavenly light, a celestial body that is filled with glory. वो शरीर आपको और मुझे मिलेगा. सबसे बड़ी बरकत ये आपको और मुझे मिलने जा रही है. अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री के पहले 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस यही बात करता है. प्रेरित पौलुस कहता है हम मिरास पाएंगे, हम मसीह के संग संगी वारिस होंगे, हम स्वर्गीय पिता के वारिस होंगे, हमें मिरास मिलेगी. वो पहले 3 चैप्टर में बात करता है परमेश्वर को इसमें से क्या मिलेगा. वचन बताता है परमेश्वर को भी मिरास मिलेगी. हमारी जलाली देहें हमारे स्वर्गीय पिता की मिरास होंगी. हालेलुया. वी विल लिव विद द फादर इन हेवन forever and ever, because our Father will give us a body that is created out of heavenly substance. Hallelujah. रोशनी से भरी बॉडी मिलेगी आपको और मुझे. हालेलुया. ये हमारे पिता की मिरास होगी. हालेलुया. परमेश्वर ने एंजल्स को, लाइट बीइंग को क्रिएट किया है जो हेवन में रहते हैं. परमेश्वर पृथ्वी में से, मिट्टी में से निकाल के लेके जाएगा अपने पुत्र और पुत्रियों को, जिन्हें वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप के ऊपर ढालता जा रहा है.
आप और मैं यीशु मसीह के स्वरूप पे ढल रहे हैं। प्रेरित पौलुस कहता है गलेशियन 4:19 में कि मुझे जच्चा की पीड़ाएं लगी हैं तुम्हारे लिए, ताकि मसीह की शक्ल तुम्हारे अंदर बन जाए, टिल क्राइस्ट इज फॉर्म्ड इन यू। रोमन्स में प्रेरित पौलुस कहता है कि ये कायनात, ये सृष्टि इंतज़ार कर रही है मैनिफेस्ट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड का। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट हों, उनकी प्रतीक्षा ये सृष्टि कर रही है। हालेलुया। तो ये मिस्ट्री है, यहाँ पे लिखा है आई शो यू ए मिस्ट्री, वी शैल नॉट ऑल स्लीप बट वी शैल ऑल बी चेंज्ड इन अ मोमेंट, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आपको मालूम यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो वर्ड यूज़ करता है, आज से 2000 साल पहले प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा इसे लिख रहा है। पलक झपकना भी इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है, पलक झपकने के लिए भी समय लगता है। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस वर्ड यूज़ करता है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई के लिए, ऑटोमोस, ATOMOS, जिसका मतलब है नैनो सेकेंड। आज से 2000 साल पहले नैनो वर्ड का भी पता नहीं था विज्ञान को, नैनो सेकेंड के विषय में भी पता नहीं था। समय की एक ऐसी यूनिट है जिसे स्प्लिट नहीं किया जा सकता, उसमें प्रभु यीशु मसीह ले जाएगा अपने लोगों को। ये सबसे बड़ी धन्य आशा है यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी ट्रम्प साउंड होगी और यीशु मसीह उठा के ले जाएगा। फिर एक और मिस्ट्री है जो आप पढ़िएगा, पूरा अध्याय मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, रोमियो की पत्री 11 अध्याय। उसके अंदर एक मिस्ट्री है जो प्रेरित पौलुस लिखता है, अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर की प्रजा ना थे, अन्य जाति के लोग जो जंगली जैतून थे, यहोवा परमेश्वर उनको असली जैतून में जो इस्राएल है उसके अंदर रोपता है और दोनों को एक बनाता है। जंगली जैतून को और असली जैतून दोनों को एक करता है। हालेलुया। ये एक बड़ा भेद था। परमेश्वर ने ये भेद छिपाए, ये भेद आदम से मूसा, दाऊद और नबियों तक परमेश्वर ने छिपाए। पृथ्वी की फाउंडेशन से परमेश्वर ने ये भेद छिपाए। जबकि एक वचन इफिसियों की पत्री में बड़ा अद्भुत वचन है। इफिसियों की पत्री के अंदर 3 अध्याय का मैं आपके लिए 10 वचन पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन, इफिसियों 3 का 10 सुनिए ध्यान से। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? टू द इंटेंट दैट नाउ अनटू प्रिंसिपैलिटी एंड पावर्स इन हेवनली प्लेसेस माइट बी नोन बाय द चर्च द मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर ने यह चाहा कि कलीसिया, जो परमेश्वर का डीएनए जिसके अंदर है, वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के डीएनए से बनी है, वो कलीसिया जो चट्टान पे खड़ी है, उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपनी मैनीफोल्ड विजडम को, हालेलुया, अपनी अद्भुत सामर्थ को, अद्भुत अगम्य बुद्धि को किनके ऊपर प्रकट करें? नाउ अनटू द प्रिंसिपैलिटी एंड पावर्स इन हेवनली प्लेसेस। जो प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में कहता है, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और दुष्ट सेनाएं जो आसमानी मकामों में हैं, उनको कौन प्रकट कर रहा है? ये सब रहस्य है, ये भेद यीशु मसीह की कलीसिया। हालेलुया। किंगडम ऑफ डार्कनेस को इफिसियों 6 की 12 पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह की कलीसिया ये डिक्लेयर कर रही है परमेश्वर की अगम्य बुद्धि और परमेश्वर के महान काम। ये छिपाए थे परमेश्वर ने। आपको मालूम क्यों छिपाए थे? परमेश्वर ने ये अद्भुत भेद स्वर्गदूतों को नहीं बताए, परमेश्वर ने अद्भुत भेद हेवन में डिक्लेयर नहीं किए, जो परमेश्वर ये बुद्धि को, अगम्य बुद्धि को, ज्ञान को, प्रकाश को अब खोल रहा है। परमेश्वर ने ये स्वर्ग में नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? मैं आपको एक वचन देता हूँ, मेरे संग निकाले 1 कुरिन्थियों की पत्री जल्दी से। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय निकालें। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय जल्दी से निकालिए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय साथ में लिखते जाइए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 6 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। हाउ बी इट वी स्पीक विजडम अमंग देम दैट आर परफेक्ट, येट नॉट द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉर द प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड दैट कम टू नॉट। प्रेरित पौलुस कहता है कि हम स्वर्गीय बुद्धि की घोषणा करते हैं। ये सरल है और संसार को ये मूर्खता लगती है, लेकिन ये परमेश्वर की बुद्धि है, लेकिन ये संसार का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है? 7 वचन पढ़ें। बट वी स्पीक विजडम ऑफ गॉड इन ए मिस्ट्री। हम परमेश्वर की बुद्धि को एक मिस्ट्री में, मस्टरियोन, जो चीज छिपी हुई है,
किसी बर्तन के अंदर बंद है, किसी गठरी में बंधी हुई है, उसमें हम इस बुद्धि को पेश करते हैं, विच गॉड ऑर्डेन्ड बिफोर द ग्लोरी, बिफोर द वर्ल्ड अनटू अ ग्लोरी, जिसे परमेश्वर ने जगत की बुनियाद से पहले अपने लोगों को महिमान्वित करने के लिए छिपा के रखा। और क्या लिखा आगे? आगे लिखा है 8 वचन, विच नन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड नो। प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के हाकिम कौन है? वो जो ऊपर बैठे हैं। इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और हर तरह की शैतानी सेना जो ऊपर है, उनसे परमेश्वर ने पर्दे में रखा है। वो नहीं जान पाए। क्या नहीं जान पाए? यहाँ पे लिखा है विच नन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड नो, उन्होंने नहीं जाना। फॉर हैड दे नोन इट, अगर वो जानते, दे वुड नॉट हैव क्रूसिफाइड द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, वो कभी यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं जाने देते। अगर उन्हें ये पता होता कि ये महिमा का राजा क्रूस पे चढ़ गया और इसके चढ़ने के बाद इसकी मृत्यु असल में उनकी मौत का काम करेगी, ये एक बीज की नाई रोपा जाएगा और इसके बाद एक महान फसल पैदा होगी, संसार के छुटकारे की, संसार के मोक्ष की, पृथ्वी के ऊपर रोशनी फूटने लगेगी, तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पे ना चढ़ने देते। और ये भेद रहस्य परमेश्वर ने छिपा के रखा। हाले, आपको मालूम, शैतान 3 डिमेंशनल चेकर खेलता है खुदा के साथ, 3 डिमेंशनल चेकर्स, लेकिन परमेश्वर मल्टी डिमेंशनल चेस खेलता है। और शैतान अपनी ही जाल में, अपनी ही छोटी सी तुच्छ बुद्धि में शैतान फंस जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना, यीशु मसीह की जलाली मौत, वो मौत मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। हालेलुया। आपको मालूम, अगर यीशु मसीह जगत में आता, बहुत अद्भुत शिक्षा देता, पहाड़ी उपदेश, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो भूखे प्यासे हैं, धन्य है वे जो शुद्ध मन है, अगर ऐसी डीप प्रोफाउंड टीचिंग दे के यीशु मसीह चला जाता जगत से, तो संसार को कुछ भी ना मिलता। अगर यीशु मसीह केवल थोड़े चमत्कार करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, दुष्ट आत्माएं निकालता, रोगियों को चंगा करता, मुर्दों को जीवन भी दे देता, और उसके बाद भी इस जगत से चला जाता, तो भी संसार को कुछ ना मिलता है। आपको मालूम, यीशु मसीह ने अद्भुत स्वर्ग के राज के भेद खोले, अद्भुत अधिकार के साथ यहोवा पिता की बातें दी, अद्भुत काम, मौजे, चमत्कार किए, पारलौकिक जीवन पृथ्वी पे जिया, लेकिन कुंजी कहाँ थी छिपी हुई? यीशु मसीह की मौत के अंदर थी। क्रूस ब्रह्मांड के मोक्ष का केंद्र बिंदु है। क्रूस दुनिया की लाइफ लाइन है। क्रूस का महायज्ञ करने के लिए वो आया। उसकी मृत्यु ही, हालेलुया, अगर उसकी मृत्यु को इसमें से निकाल लिया जाए, और दूसरी चीज क्या है, उसका पताल में जाना और पताल को जीतना निकाल लिया जाए, और पताल और मौत को हरा के मुर्दों में से जयवंत होना निकाल लिया जाए, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फिर कुछ भी नहीं है। उसकी जलाली मौत, उसकी विजय मौत पे और शैतान पे, और उसका मुर्दों में से जी उठना, ये भेद परमेश्वर ने बताए नहीं, ये छिपे हुए थे कलाम में। हालेलुया। केवल पिता ने छिपा के रखे, बताए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 3:1 में लिखा है, यीशु मसीह हमारा अब महायाजक है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और आपके प्रोफेशन का, जो आप बोलते हो, अंगीकार करते हो, उसका महायाजक है। आपका अंगीकार ये होना चाहिए। हालेलुया। ये बोलना आपने अपने मुंह से कलाम, इसे अंगीकार करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से इसे छिपाया, पुस्तकों में नहीं लिखा, अगर लिखा तो पोशीदा रखा, नहीं तो शैतान जब गिरा नहीं था उस समय जाना होता ये भेद। अभी भी वो भेद जानता है जब वो ओबीडियंस में चल रहा था यहोवा की। उन परमेश्वर के रहस्यों के द्वारा मानवता को गुमराह करता है। वचन में लिखा है, उसने जिसमें जगत के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। हालेलुया। तो वचन क्या बताता है कि यीशु मसीह की आमद जो है, उसकी घड़ी और समय को कोई नहीं जानता। हालेलुया। कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पिता ने इसे छिपा के रखा है। देखिए, आप
शैतान को इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है कि वचन में लिखा है, पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक पढ़ें। पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक में एंजल्स जाते हैं यहोवा परमेश्वर के पास अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। वो शायद अपनी रिपोर्ट देते हैं नेशंस की, तो शैतान भी जाता है और परमेश्वर के जुडिशियल चेंबर में जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है कि वो भाइयों पे दोष लगाता है। उस चेंबर में जाता है और यहोवा परमेश्वर उससे पूछता है, हैव यू कंसिडर्ड माई सर्वेंट जॉब? तो वो उसने अय्यूब के विषय में सारी जानकारी पहले इकट्ठा की है। तो वो क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर तुमने उसको बड़ी आशीष दी है, तुमने उसको बड़ी बरकत दी है, तुमने उसको पुत्र पुत्रियां दिए हैं, ज़मीन जायदाद दी है, तुमने उसको धन संपत्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, मान दिया है, सम्मान दिया है। वो आपकी सेवा इसके लिए करता है, अगर आप इसे उससे छीन लोगे वो आपको कर्ज करेगा। तो पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 6 से 12। तो क्या कहता है प्रभु? शैतान प्रभु से कहता है तुमने हैज बनाए हैं उसके इर्द गिर्द। शैतान के इर्द गिर्द, शैतान ने देखा कि अय्यूब के इर्द गिर्द बाढ़ लगी है। हालेलुया। आपको मालूम अय्यूब क्या करता था? वचन में लिखा है पहले अध्याय में, उसके बेटे बेटियां वो पार्टियां करते थे, शायद वो प्रभु में इतना नहीं चलते थे। तो अय्यूब अपने बेटे बेटियों के बिहाफ पे कुर्बानियां करता था परमेश्वर के आगे। ये सोचता था कहीं इन्होंने पाप ना किया हो, उनको कवर करता था, प्रोटेक्ट करता था। और शायद शैतान अय्यूब का ये फियर फैक्टर समझता था कि कहीं ना कहीं वो फियर है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो कुर्बानियां करके अपने बच्चों को कवर करता है कि कहीं उनके ऊपर विपत्ति ना आए। आपको मालूम, जकरिया नबी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, मैं तेरे इर्द गिर्द आग की दीवार बन के रहूँगा। ही सेज आई विल बी वॉल ऑफ फायर अराउंड अबाउट दी इन जकराया। आग की दीवार बन के रहूँगा। फिर परमेश्वर कहता है 34 साम में, द एंजल ऑफ द लॉर्ड विल एनकैम्प अराउंड द राइचस। दूत कैंप बनाते हैं, कंटोनमेंट, जहाँ पे आर्मी रहती है, कंटोनमेंट करके रखते हैं दूत धर्मी व्यक्ति के इर्द गिर्द। फिर परमेश्वर का कलाम बताता है कि यीशु मसीह अपने लहू से ऐसे प्रोटेक्ट करता है अपने लोगों को, लहू स्प्रिंकल करके रखता है, खून में छिपा के रखता है। फिर परमेश्वर का ये कलाम जो हम बोलते हैं इसे, ये हमारे इर्द गिर्द बाड़ा बनता है। 4 तरह की बाड़ें होती हैं परमेश्वर के धर्मी लोगों के इर्द गिर्द। शैतान उन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। उसने कोशिश की पहले, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसके पास अय्यूब की सारी अर्थली इन्फॉर्मेशन थी। ये बदरुएँ सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। शैतान आपके खिलाफ हेवन में जाके रिट डालता है, पिटीशन डालता है, केस करता है आपके खिलाफ, आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। ही प्रेजेंट्स ऑल द एविडेंस, ही कैरीज योर वर्ड, ही प्रेजेंट्स ऑल द डॉक्यूमेंटेशन बिफोर गॉड टू स्टॉप योर ब्लेसिंग। हेवन में जुडिशरी है, हेवन में कोर्ट्स हैं, हेवन में सुप्रीम कोर्ट है, हेवन में हाई कोर्ट है, हेवन में कोर्ट ऑफ द एंजल्स हैं, हेवन में डिवाइन कौंसल्स हैं। हेवन के अंदर कौंसल हैं 24 एल्डर्स की भी। हेवन के अंदर एंजेलिक कौंसल्स भी हैं। हेवन के अंदर वॉचर्स की कौंसल्स भी हैं। वॉचर फैसला लेते हैं। आप पढ़िएगा दानियल नबी की पुस्तक में, उसके 2 अध्याय और 4 अध्याय के अंदर डिवाइन कौंसल्स का जिक्र है, जिन्होंने नबूकदनस्सर के लिए डिसीजन लिया डिवाइन कौंसल ने। तो जुडिशरी चलती है हेवन में। सेटन गोज, ही प्रेजेंट्स हिज केस, ही कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू। तो प्रभु दिखाते हैं, अगर आप पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 18, दूसरा इतिहास 18 अध्याय, मैंने आपको पहले बताया एक दिन, अहाब एक दुष्ट राजा है, उसका एक राजा है जो सदर्न किंगडम का राजा उसका दोस्त है यहूदा का, उसका नाम है यहोशापाट। यहोशापाट पता नहीं क्यों बुरे इंसान से संगति रखता है, और उन्होंने रामोत गिलियद में लड़ने के लिए जाना है। यहोशापाट शुडंट बी गोइंग देयर, उसको जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो दोस्ती रख रहा है इस बुरे राजा से। पॉलिटिकल रीज़न है उसके, इकोनॉमिक रीज़न है उसके। आपको मालूम, गलत संगतियां बहुत बुरी सजा देती हैं। अहाब जो है, इसकी पत्नी का नाम है इज़ाबेल, और बहुत दुष्ट स्त्री है। उसने इज़राइल को यहोवा के विरोध में किया है।
बाल की पूजा करवाई इज़राइल से। पूरे इज़राइल के ऊपर नॉर्दर्न किंगडम पे यहोवा की लानत उस स्त्री के द्वारा आई है। और यहोशापाट धर्मी राजा है, लेकिन दोस्ती है अहाब से। तो क्या होता है, यहोशापाट का बेटा है ज़ोहराम, और अहाब और इज़बेल की एक बेटी है जिसका नाम है अथालिया। मैंने आपको उस पर मैसेज दिया है। उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, इस राजा का बेटा, उस राजा की बेटी, और उनकी शादी हो जाती है। आपको मालूम, जो नॉर्दर्न किंगडम है उसमें दुष्ट राजा थे, उसके ऊपर यहोवा की सजा आई, लेकिन सदर्न किंगडम ने नॉर्दर्न किंगडम जैसे बुरे पाप नहीं किए थे। लेकिन जब ये यूनियन हुई, अहाब और इज़बेल की बेटी की शादी होगी सदर्न किंगडम में ज़ोहराम से, यहोशापाट के बेटे से, तो वही पाप यहूदा में आ गया और उसके बाद यहूदा भी गुलामी में चला गया। तो बुरी अलायंस नहीं होनी चाहिए, सही संगति चाहिए। रूहानी संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। केवल पैसे के लिए, संसारिक चीज़ों के लोभ के लिए ये संगतियां नहीं करनी चाहिए। आप अगर चले जाओगे इस दुनिया से, आपकी संतान आपकी अलायंस की सजा भोगती रहेगी। समझ रहे हैं आप? कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं कि बहुत बड़ी चर्च है, उनसे रिलेशनशिप बनाएं, हम भी जाएंगे उधर, हमें प्रचार का मौका मिलेगा, उनको हम बुलाएंगे, वो आप मेरी पीठ खुजला दो, मैं आपकी पीठ खुजला दूंगा। ऐसी फाइनेंशियल गेन के चक्कर में फ्रेंडशिप रखते हैं। आपकी यूनियन यहोवा की ओर से होनी चाहिए। आप प्रेम सबसे करें, लेकिन आप संगति सबसे नहीं कर सकते। हालेलुया। तो दूसरा इतिहास, उसके 18 अध्याय में देखते हैं हम दर्शन। मकाया एक सच्चा नबी है यहोवा का। वो दर्शन देखता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा विराजमान है, कोर्ट रूम लगा है, और उसके राइट और लेफ्ट हैंड स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट वर्ल्ड है। तो जो लेफ्ट हैंड पे बुरी स्पिरिट है, उनमें से एक स्पिरिट आके कहती है, मैं जाके अहाब को धोखा दूंगी, उसके नबियों के मुंह में घुस जाऊंगी और वो झूठी नबूवतें करेंगे। हालेलुया। यहोवा के लेफ्ट हैंड से स्पिरिट आती हैं जो झूठे नबियों के अंदर काम करती हैं, जो झूठी नबूवतें करते हैं, लोगों को बरकतें बांटते हैं होलसेल में। प्रभु ने कुछ नहीं कहा होता, अपनी ओर से लोगों को ब्लेसिंगें, बरकतें दे रहे होते हैं। परमेश्वर न्याय करेगा आपके एक एक शब्द का। क्या आप परमेश्वर की ओर से बोल रहे हो, या आप सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री को एनहांस करने के लिए बोल रहे हो? हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ब्रिंग इनटू लाइट एवरीथिंग दैट यू डू। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे काम सोने के होंगे, चांदी के होंगे, या कीमती पत्थर के होंगे, या फिर हमारे काम लकड़ी के होंगे, घास के होंगे, फूस के होंगे। प्रभु के आगे खड़े होंगे अपने काम लेके हम, और ये आग में से निकाले जाएंगे। स्मरण रखिएगा, उस समय सारे काम प्रकट हो जाएंगे। हर तरह की सेवकाई जो की जा रही है सब प्रकट हो जाएगी उस समय। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर के सामने वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके केस बनाते हैं। और आपको मालूम प्रभु भी क्या कहता है? प्रभु कहता है 2 या 3 गवाहों के मुंह से गवाही स्थापित की जाती है, और वो गवाह होने चाहिए पवित्र आत्मा से भरे और सच्चे। प्रभु तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति के विषय में कोई दोष मत सुनना जब तक 2 या 3 गवाह जो पवित्र आत्मा से भरे हों, प्रभु के दास हों, वो आके कहें। डोंट एक्सेप्ट एनी एक्यूजेशन against a brother or a sister from anyone unless and until 2 or 3 witnesses who are godly, who are filled with the Spirit, they may verify it. लेकिन कलीसिया नहीं मानती। कलीसिया तो लोगों के चरित्र को हनन कर देती है, करेक्टर असैसिनेट कर देती है, बिना कुछ जाने, बिना सत्य को जाने। तो प्रभु ने भी क्या किया? देखिए, सदोम और गोमोरा की पाप की पुकार प्रभु तक पहुंची, तो प्रभु आया। प्रभु अपने संग 2 एंजल ले आया, और प्रभु किसके पास गया? अपने दोस्त के पास। उसका दोस्त है इब्राहिम। प्रभु कहता है मैं छिपा नहीं सकता अपने फ्रेंड से। अगर नबी आज के यहोवा के फ्रेंड होते तो यहोवा ज़रूर बताता उनको। यहोवा ने नहीं बताया क्योंकि वो फ्रेंड नहीं है।
हालेलुया। क्योंकि वो तो झूठी प्रोफेसी सेल कर रहे हैं। जैसे किसी ने टक शॉप खोली होती है और चाइनीज़ फॉर्चून कुकीज़ होती हैं। आप देखिएगा ब्रिटेन, यूएस, इन कंट्रीज़ में जाइएगा, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाना खाने के बाद छोटी सी कुकी देते हैं। वो कुकी आप खाइए, उसके अंदर एक छोटी सी चिट लिखी होती है, उसमें लिखा होता है यू आर गोइंग टू गेट $1 million वेरी सून, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू कार वेरी सून, योर मैरिज इज़ ऑन द होराइजन, ए न्यू गर्लफ्रेंड इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड बाय अ ग्रेट गिफ्ट कमिंग योर वे। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। नबी भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, झूठे नबी लोग। ये नहीं है, कलाम नहीं है। आपको मालूम लोगों को नबूवतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये कलाम जीवन में नहीं है, परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। अगर प्रभु से रिश्ता है, आप विजडम ढूंढेंगे, विजडम, नॉट अ फॉल्स प्रोफेसी। तो प्रभु 2 एंजल को भेजता है, साडम एंड गोमोरा की रिपोर्ट लेकर आओ। 3 जो हैं उनमें से सेंटर में जीसस हैं। उसके जीसस के आगे इब्राहिम जो उनका फ्रेंड है झुकता, उनकी उपासना करता है, उन्हें बढ़िया खाना खिलाता है। 2 एंजल जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए, हालेलुया, साडम एंड गोमोरा की। क्योंकि परमेश्वर भी इंफॉर्मेशन एंजल के थ्रू कलेक्ट करता है। ये नहीं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, बट ही हैज़ अ सिस्टम इन हेवन। हेवन में बुक्स हैं, हेवन के अंदर हर चीज़ राइटिंग में है। हेवन के अंदर न्यायपालिका है, जुडिशरी है, हर चीज़ की अकाउंटिंग है हेवनली रेल्म के अंदर, हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का पहला वचन। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कमिंग टू यू, इन द माउथ ऑफ 2 or 3 विटनेसेस शैल एवरी वर्ड बी एस्टैब्लिश। 2 या 3 गवाह। तो 2 एंजल जाते हैं कहाँ पे? साडम एंड गोमोरा में। ये फ्लाई मुझे इतना तंग कर रही है, हालेलुया। वो पूरी रिपोर्ट लेकर आते हैं। आप पढ़िएगा जेनेसिस चैप्टर नंबर 18, मैं पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। जेनेसिस 18, 20 and 21। जेनेसिस 18 वर्स नंबर 20-21 सुनिए। द लॉर्ड सेड, बिकॉज द क्राई ऑफ साडम एंड गोमोरा इज ग्रेट, बिकॉज ऑफ देयर सिन इज ग्रीवियस, आई विल गो डाउन नाउ एंड सी whether they have done altogether according to the cry of it which is come unto me, and if not, I will know. He is omniscient, he knows everything, but still God is going down to collect the information, hallelujah. तो परमेश्वर पूरी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करते हैं, उसके एंजेलिक बीइंग्स, और सेटन भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पूरा केस फाइल अप करता है, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर की किंगडम में, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। बुक्स हैं हेवन में। मैंने एक दिन आपको बुक्स के ऊपर बताया था। आपके कामों की एक किताब है, योर वर्क्स आर रिकॉर्डेड देयर। आपके रिवॉर्ड की एक किताब है, आपके रिवॉर्ड उसके अंदर लिखे गए हैं। आपके एक रजिस्ट्री की बुक है, मेमने के जीवन की पुस्तक, जो नया जन्म पाते हैं उनका नाम लिखा जाता है उसके अंदर। फिर एक बुक है जिसके अंदर टीयर रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपके टीयर। एक बॉटल के अंदर टीयर्स रखे जाते हैं, टीयर बॉटल है वो। फिर एक बुक है जिसे बुक ऑफ रिमेम्बरेंस कहा गया मलाकी नबी की पुस्तक में। वो परमेश्वर उनके लिए लिखता है जो यहोवा का भय मानते हैं, पवित्र और धर्मी लोग हैं। जब भी वो बातें करते हैं, यहोवा की बातें करते हैं, यहोवा उनकी सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, हालेलुया। हेवन में ऐसे आप यहाँ से अपलोड करते हो इन्फॉर्मेशन और आप डाउनलोड करते हो इन्फॉर्मेशन। ये एंजल आए हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और आपको मालूम एंजल आता है। दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय और 12 अध्याय पढ़िए। दानियल फास्टिंग कर रहा है और ऊपर से एक माइटी एंजल आता है इन्फॉर्मेशन लेके, हेवनली इन्फॉर्मेशन लेके। जैसे ये इंटरनेट है ना, आप अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, आप देखते हैं 2 सिग्नल, एक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। लोग इसके अंदर सैटेलाइट के थ्रू ऊपर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, फिर वही इन्फॉर्मेशन को लोग गूगल सर्च करके देखते हैं। आप वही इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं जो किसी ने ऊपर अपलोड की है, हालेलुया। तो गैब्रियल इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। तो
मैं आपको बताता हूँ कि पहला कुरिन्थियों में जो हमने पहले पढ़ा कि हार पैजो होगा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह तुरी फूकते आएगा। फिर हमने पढ़ा पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में, हालेलुया, वहाँ लिखा है कि मॉर्टैलिटी शैल पुट ऑन इमॉर्टैलिटी, नाशवान देह अविनाशी देह में बदल जाएगी, हालेलुया। सबसे बड़ी बरकत हमें ये मिलेगी कि हमारी देह, कमज़ोर देह अविनाशी देह में बदल जाएगी और हम परमेश्वर के संग रहेंगे। इस देह में आप परमेश्वर के संग नहीं रह सकते। ये देह के अंदर करप्शन है, डिके हो रही है ये देह, लेकिन एक जलाली देह मिलेगी। परमेश्वर के संग रहने से देह जलाली हो जाती है। हनूक परमेश्वर के संग 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 चलता रहा, एंड ही इलोप्ड, क्योंकि वो जलाली हो गया और उड़ गया, हालेलुया। तो शैतान नहीं जानता ये भेद परमेश्वर के, और किसका भेद नहीं जानता? रैप्चर का, उठाए जाने का भेद नहीं जानता शैतान। प्रभु ने छिपा के रखा है, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:3 में एक अद्भुत आयत है। प्रभु यीशु मसीह का आमद की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आमद की प्रतीक्षा में लगे कि प्रभु आ रहा है। तो इस आमद की प्रतीक्षा करने का फल क्या है? पहला यूहन्ना 3:3 आपके लिए पढ़ता हूँ मैं। पहला यूहन्ना 3:3, सुनिए ध्यान से। यूहन्ना की पत्रियाँ जो हैं उसमें से पहला यूहन्ना 3:3 आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, हालेलुया। 1 जॉन 3:3 यहाँ लिखा है, एंड एवरी मैन दैट हैथ दिस होप इन हिम प्योरिफाइथ हिमसेल्फ इवन एज ही इज प्योर। जिस व्यक्ति के अंदर ये आशा है कि प्रभु आ रहा है और मैंने प्रभु के संग जाना है, ओनली अ पर्सन हु हैज दिस होप and he is expecting the Lord to come down to receive him unto himself, he persistently keeps an eye on his inner life and he continually engages in a process of cleansing himself. It says, and every man that hath this hope in him purifieth himself. You purge yourself, you stay away from the sinful world, you walk in holiness and purity, you commit yourself to the execution of the perfect will of God. Daily you put yourself on the cross, you deny yourself. Daily you put the works of the flesh on the cross and you make a deliberate conscious choice to follow the Lord in purity and holiness, because there is a hope in your heart. You believe that Lord is coming and I got to go with him. आपके अंदर ये जो आशा है ये आपको पवित्र करने की प्रेरणा देती है। पवित्र जीवन जीना, धर्मी जीवन जीना, परमेश्वर के कलाम में बने रहना, प्रभु भोज लेना, परमेश्वर के मार्गों में चलना, हालेलुया, ये आपको सजग रखता है। वरना आपके अंदर होगा स्लॉपी अगापे, ग्रीसी ग्रेस। समझ रहे क्यों बहुत सारे लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, गुनगुना जीवन? क्योंकि उनके अंदर ये आग नहीं है, हालेलुया। मत्ती 24:36 में एक वचन मैं पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 36, सुनिए क्या कहता प्रभु। बट ऑफ दैट डे एंड आवर नोएथ नो मैन, नो नॉट द एंजल्स इन हेवन बट द फादर ओनली। पिता ने अपने हाथ में रखा उस बात को, ताकि हम हर समय सजग रहें और अपने आप को डिफाइल ना करें, पाप में ना जिएं, अपनी देह को गंदगी में एंगेज ना करें, पवित्र और धर्मी जीवन जिएं प्रभु के लिए, ये आशा में कि हमारा प्रभु किसी भी समय आ सकता है। हमारी कुप्पी में भी तेल भरा हो और हमारी जो विक है उसको हम ट्रिम किया हो आगे से, उसके ऊपर कार्बन ना जमी हो, और लौ हमारी चिराग की ऐसे लपट पड़ रही हो, उसके अंदर से रोशनी हमारे अंदर से जगती हो, जलती हो प्रभु यीशु मसीह की। को मालूम यीशु मसीह बताते हैं कि एक स्वामी ने अपने एक दास को 10 टैलेंट दिए, एक को 5, एक को 1। जिसको 1 दिया उसने ज़मीन में गाड़ दिया, और प्रभु बहुत क्रोध में आया उससे। प्रभु ने उसको कहा, कम से कम तुम मेरे 1 टैलेंट को
लोगों को इंटरेस्ट पे दे सकते थे, मुझे कुछ ना कुछ तो हासिल होता, तुमने बहुत बुरा काम किया। तो प्रभु ने क्या कहा, जिसने ज़मीन में गाड़ दिया था तोड़ा, प्रभु ने कहा इससे छीन लो, जिसने 5 के 10 किए हैं उसको ये तोड़ा दे दो। हालेलुया। आपको अपनी रोशनी को चमकाना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अपने आप को जलाना होगा। आप मोमबत्ती को बिना जलाए पैकेट में बंद करके नहीं रख सकते। जो प्रभु ने आपको दिया उससे कुछ ना कुछ तो कीजिए। एक व्यक्ति, मैंने उसकी गवाही पढ़ी बहुत साल पहले, वो अमेरिका के किसी कॉर्नर पे खड़ा होकर प्रीच कर रहा था, और एक प्रचारक बहुत बड़ा जिसने MTH, DDH, PhD की थी, वो उसको सुन रहा था। तो उसने देखा कि जो वो प्रचार कर रहा था उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी और थियोलॉजिकली इतना बढ़िया कलाम नहीं था। तो उसने प्रचार किया। उसके बाद वो व्यक्ति उसके पास जाता है, उसे कहता है कि यू डोंट नो द बाइबल। तो वो प्रचारक जो प्रचार करके हटा, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा था, वो बोलता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बाइबल नहीं जानता, मैं अंग्रेजी भी नहीं जानता, लेकिन मैं जितना कुछ जान रहा हूँ मैं वो प्रभु के लिए लगा रहा हूँ। आप तो बहुत कुछ जानते हो, आप उसके साथ क्या कर रहे हो? बहुत पैसा आपको प्रभु ने दिया, बहुत डिग्रीज, बुद्धि, बहुत अच्छे देश में आपको रखा, आपको रिसोर्सेज दिए, क्या कर रहे हो उसके साथ आप? बताइए। एक दिन प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु क्या कहते हैं? लूका की इंजील के 19 अध्याय के 13 वचन में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा है, एंड ही कॉल्ड हिज 10 सर्वेंट्स एंड डिलीवर्ड unto them 10 pounds and said unto them, occupy till I come। उसने क्या किया? 10 नौकरों को बुला के उनको 10 पाउंड दे दिए, एक एक पाउंड दे दिया, और कहा ऑक्यूपाई टिल आई कम, करते रहो जब तक मैं नहीं आता। डू बिजनेस। ऑक्यूपाई का मतलब क्या है? ग्रीक में मतलब है डू बिजनेस विद दिस। टैलेंट आपको मालूम क्या होता था? आज लोग टैलेंट सोचते हैं कि वो गाने का टैलेंट है, उसको डांस का टैलेंट है। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता था उस समय। ग्रीक वर्ड है तालंते, जिसका मतलब एक सोने की छड़ दी जाती थी, गोल्ड बार, और वो सोने की छड़ के द्वारा काम करना होता था। एक छड़ से 2 छड़, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनाओ, काम करो उसका, स्वामी का। हालेलुया। मत्ती 24 के 44 में पढ़ें, वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते स्वामी किस घड़ी आएगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है, जो आत्मा में चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो परमेश्वर की बुद्धि से भरे हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर, द लॉर्ड सेज, यू वुड डिसर्न द टाइम्स, यू वुड नो द टाइम्स, you would discern the seasons, you would see the spiritual moves, you would see the things that are unfolding in the world, in the political arena, in the economic arena, the international upheaval that you will see, nations rising up against the other nation. You will see all the signs that will happen in the sky, the celestial sign, and you will see the upheaval, you will see the earthquake, the seismic signs, the hurricanes and all kind of natural calamities. You will see, epidemic and pandemics, and you will see famines and sword and all these things coming. तो प्रभु कहता है तुम्हें पता लगेगा कि तुम किस समय किस जगह खड़े हो. You are not in the darkness, the Lord says. The darkness will not overtake you unaware. अगर आप परमेश्वर के कलाम के साथ जीवन जी रहे हो तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हो. हालेलुया. परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति की संतान हो. तुम उन चिन्हों को समझोगे और जानोगे कि प्रभु जल्दी वापस आ रहा है. तो प्रभु लौट रहा. भाई और बहनों, भेद खुल रहे हैं परमेश्वर के. परमेश्वर के संग रहिए, उसके चरणों में बने रहिए, पवित्र आत्मा में चलिए, परमेश्वर के लिए जिए. स्वार्थ के लिए मत जीना, पैसे के लालच लोभ के पीछे मत भागिए, संसारिक चीज़ों के पीछे. प्रभु के लिए बीजिए, बोइए प्रभु के लिए. आपको मालूम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? इस युग में, इस एज में अगर प्रभु ने आपको दिया, उसको बोएं ताकि नेक्स्ट एज में आपको ट्रेजर मिले. दैट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट. प्रभु आप सबको आशीष दे. सबको जय मसीह की.